Hello everyone, good morning. I am Dr. Anupama Labhe and I am here for discussing with you the subject business law. Under that, today we are discussing the topic void agreements. What are void agreements? Agreements which are not recognized by law are known as void agreements. So, what is void agreements? Agreements which are not recognized by law. Which are those agreements which are not recognized by law? Here are the agreements which are treated as void one. If the agreement is entered into by the competent person, that is incompetent person, if entered into a contract, then his agreement will be treated as void one. Who are incompetent persons? We already discussed it under our Contract Act, but for revision we are again discussing it. Incompetent person means a person who has not attained his age of majority. The second one, that is not of sound mind. Third one, drunken person. These are all included as a person who are incompetent to enter into an agreement. And if any agreement is entered into by these persons, then that agreement is void agreement. That means it does not have any legal recognition at law. Then the second one is bilateral mistake of facts. What is bilateral mistake of facts? When both the parties who are entering into an agreement are of mistake of the fact. चलो एक एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए एग्रीमेंट में एंटर किया है वो एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों से कुछ गलती हुई है. गलती क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक हॉर्स है जिसे हमने सेल करने के बारे में कहा है, लेकिन वो हॉर्स ही अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है, लेकिन दोनों भी पार्टी को ये पता नहीं है, जो सेलर है उसे भी मालूम नहीं है, एंड द पर्सन हु इज बाइंग दैट हॉर्स इज अननोन ऑफ द फैक्ट दैट द हॉर्स इज डाइड. That's why these type of mistakes are known as bilateral mistakes, and no one party can abide the other to perform the agreement. So such a type of mistakes are also known as void agreements. Next one is unlawful object or unlawful consideration. Obviously, if you want to enter into a valid agreement, then your object, that means the purpose of entering into an agreement, must be lawful and the consideration must be a lawful one. Then without consideration, yes, if you want to enter into an agreement, there must be a consideration. What is consideration? Consideration means something in return. हमने पहले ही कहा कि अगर मैं आपको कुछ गिफ्ट देने के लिए प्रॉमिस करती हूँ, जैसे मैंने कहा कि आप अच्छे से पास हो जाइए, मैं आपको ये गिफ्ट देने वाली हूँ, और अगर मैं वो आपको गिफ्ट नहीं देती हूँ तो आप मुझे लीगली अबाइड नहीं कर सकते हैं फॉर पेइंग यू द गिफ्ट. क्यों नहीं? क्योंकि ये सिंपल मैंने क्या किया था, आप लोगों के साथ में एक एग्रीमेंट किया था, उसके बदले में मुझे आपसे कुछ भी मिला नहीं था. इसलिए विदाउट कंसिडरेशन, दैट मीन्स द सोशल एग्रीमेंट्स आर आल्सो ट्रीटेड एज द एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, एंड दैट्स व्हाई दीज एग्रीमेंट्स आर नोन एज void agreements. Then there are some other agreements which are expressly declared as void agreements by the law. What are those? That means the first one is restraint of marriage. The agreement which you are entered into with a person to restrain marriage is also an agreement which is a void agreement. क्या होता है, जैसे कि हमें एक लिबर्टी दी गई है, जैसे जिसने अपने मेजर एज को अटेन किया है, ही हैज लिबर्टी टू चूज हिज लाइफ पार्टनर, बराबर है. लेकिन आप अगर उसमें उसके बाधा डाल रहे हो, रिस्ट्रेनिंग मीन्स क्या है, आप उसमें कुछ बाधाएं डाल रहे हो, तो यू डू नॉट हैव एनी राइट टू रिस्ट्रेन हिज मैरिज. तो ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड एग्रीमेंट. दूसरा है
restraining a person to enter into a lawful trade or business. जैसे हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और राइट दिया है कि हम जो भी बिजनेस चाहते हैं उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और हमारे पास अगर उसकी जो एसेंशियल डिग्री है, जो एसेंशियल सर्टिफिकेट्स है वो हमारे पास है, तो हमें कोई भी उस बिजनेस को या उस प्रोफेशन को करने के लिए कोई भी हमें मना नहीं कर सकता है। इसलिए अगर मैं किसी को who is legally entitled to enter into that particular profession or business, अगर ऐसा है और मैं उसे मना करती हूँ और ऐसा हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट बनता है, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? वॉइड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट वन इज लीगल प्रोसीडिंग्स। जैसे कि मुझे राइट दिया है, अगर मेरे जो राइट्स है उसे आप अगर मुझे नहीं देना चाहते हो, तो आई हैव अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। दैट मीन्स आई कैन do the legal proceedings against you। अगर आपने मेरे साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है जिसमें आप मेरा ये राइट ही मुझसे छीनना चाहते हो, तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है? रिस्ट्रेनिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने सर्वेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, एग्रीमेंट किया हुआ है दोनों के बीच में कि अगर वो उसे छोड़ के जाता है, अगर वो सर्वेंट जो है उसे छोड़ के जाता है, या तो ये जो एम्प्लॉयर है उसने उसे जो सर्विस दी हुई है वो कोई रीजन से, यानी जिसमें उस सर्वेंट की कोई भी गलती नहीं है, ऐसे रीजन से उसे निकाल दिया जाता है उसकी सर्विस से, और उसमें एग्रीमेंट लिखवाया जाता है वो सर्वेंट से कि उसके अगेंस्ट में, दैट मींस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में वो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होगी? वॉइड। क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं है और आपको अगर उस काम से निकाला जाता है, तो यू हैव अ राइट टू गेट द कंपनसेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टी। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि उन्होंने पहले एग्रीमेंट कर लिया है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करोगे। तो ऐसे कोई एग्रीमेंट्स में एंटर किया जाता है, तो ऐसे भी एग्रीमेंट्स को क्या कहा जाता है? वॉइड एग्रीमेंट्स। देन द एग्रीमेंट्स which have uncertain meaning। क्या होता है उसमें? अनसर्टेनिटी है। हम जिस एग्रीमेंट में एंटर करना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट मैटर है वो अनसर्टन है, होगा या नहीं होगा उसका हमें कोई भी हमें उसकी गारंटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। जैसे कि और अनएम्बिगियस होना चाहिए, वेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये समझ लीजिए कुछ मेरे पास है एक व्हीकल, उसे मैं सेल करना चाहती हूँ और मैंने कहा कि मैं 5000 और मैं उसे 10,000 में सेल करना चाहती हूँ। सर्टेनिटी है क्या इसमें? 5000 में या तो 10,000 में सेल करना चाहती हूँ, कोई सर्टेनिटी नहीं है। मुझे क्या देना है यहाँ पे? स्पेसिफिकली मुझे बताना है कि कितने में, एक तो 5000 या तो 10,000। ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, तो ही ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? सर्टेनिटी होनी चाहिए। टाइम की भी सर्टेनिटी होती है, आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि ये टाइम के अंदर या ये टाइम में ही आपको ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। जहाँ पे ये सर्टेनिटी नहीं रहती है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो एंटर किए हैं, दोज एग्रीमेंट्स आर नोन एज अनसर्टेन मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट्स। देन वेजरिंग एग्रीमेंट्स, हमारे इंडियन लॉ ने वेजरिंग दैट मीन्स गैम्बलिंग को क्या कहा हुआ है? अनलॉफुल। इसलिए ऐसे अगर एग्रीमेंट में हम लोग एंटर करते हैं तो दीज एग्रीमेंट्स आर नोन एज वॉइड एग्रीमेंट्स। देन कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? कंटिंजेंट ही क्या होता है? कंटिंजेंट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग। बराबर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंटिंजेंट। अगर ये कंटीजेंट एग्रीमेंट जो हम लोग एंटर कर रहे हैं वो ही किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे इसमें अगर हम लोग कोई एग्रीमेंट को एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा एग्रीमेंट क्या होने वाला है? वॉइड एग्रीमेंट। एंड द लास्ट वन इज टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ऐसे एग्रीमेंट में हमने एंटर किया हुआ है जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है यानी क्या है? क्या ऐसे कौन से एक्ट्स होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, ये जो बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने कहा कि ए है, बी को एक एग्रीमेंट में एंटर करता है, यू हैव टू मैरी सी, बट सी इज ऑलरेडी डेड, हाउ ही कैन मैरी सी? पॉसिबल है क्या? उससे जो है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है, उसके साथ आप शादी कर सकते हो क्या? तो ऐसे जो इम्पॉसिबल एक्ट्स होते हैं,
ऐसे इम्पॉसिबल एक्ट्स किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स। एंड वॉइड एग्रीमेंट्स आर अब इनिशियो वॉइड। अब इनिशियो मीन्स क्या होता है? फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। वेरी बिगिनिंग यानी आप जब एंटर कर रहे हो तभी ये कैसे हो गए हैं? जिसकी पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है? वॉइड एग्रीमेंट। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक और देखा है कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा देखा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट should not be mixed up with void agreements, और आपने उसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। void agreements जो होते हैं from ab initio these are void, but void contract becomes void after because due to some uncertain happenings of some events or change in some laws। ऐसे इसमें हमने क्या देखा है? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अब इनिशियो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं रहता है। क्यों वॉइड हुआ है? क्योंकि ऐसे लीगल रूल्स जो है वो क्या हो गए? चेंज हो गए हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्टीज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट्स। इस वजह से वो जो पहले वैलिड थे लेकिन अब क्या हो गए हैं? वॉइड। लेकिन ये जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आर वॉइड। और वॉइड क्यों है? क्योंकि इसलिए है कि जो हमें इसेंशियल्स ऑफ वैलिड बताया है वो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट वो प्रेजेंट ही नहीं है। क्या बताया गया था हमें वैलिड के लिए? ये बताया गया था कि पर्सन कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हु इज एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट? A person who is not competent to enter into a agreement। ऐसा पर्सन अगर स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा? इट विल बी void ab initio। Is it clear to you? Okay, thank you।